Hello everyone and welcome. I'm Komal Bansal, your host. Today we are discussing the crucial role of microbiologists in combating AMR. We are honored to have Dr. Shweta Kedari with us. She is an MBBS MD in clinical microbiology from Tata Cancer Hospital, ex-assistant professor at KEM Hospital Mumbai and director at Third Eye Diagnostics and an infection control officer. Dr. Kedari, welcome. We are eager to hear your insights. Attendees, please use the chat box for your questions and please keep your mic and video off during the webinar. Dr. Kedari, let's begin. Yeah, hi. Good afternoon, everyone, and thank you first of all for joining our session where me and Ms. Komal, we had decided that we will talk about a very important topic. And when she asked me to discuss a very important topic, this antimicrobial resistance is the one that actually came in my mind. And today more than a lecture. I want this to be an interactive session. So I will be discussing about AMR in short, but mainly talking about its danger side effects, how it is harmful, and the main part that how as doctors, microbiologists, and technicians we can avoid this further and how to prevent and manage this on our level. This is the main discussion today, and more than a lecture, please let's have a interactive session. So I won't mind if you ask a question in between, and definitely I want more questions from you. Any doubt, please don't hesitate. I'll try to answer as much as possible. Okay. So Yeah. Sorry to interrupt. Okay. So as I said, what are we exactly going to discuss today? So let me start with first of all, as I said, AMR definition, dangers, and the reason why we are all gathering together and why we are here discussing it. Mechanism very briefly, diagnosis, lab में test क्या करते हैं. I was requested to speak both languages, English and Hindi. So I'm going to mix it up a little bit. Management and prevention, यहाँ पे we are going to discuss this on a more detailed level, and यहाँ पे I expect questions from your side. Please, अगर questions नहीं आए तो ये माना जाएगा कि शायद कुछ समझा ही नहीं है. So please throw in more and more questions regarding management and prevention and whatever doubts you have. So what is antimicrobial resistance? सबसे पहले तो ये बात किया जाए कि when an antibiotic is not working against any infection, be it because of bacteria, virus, fungus, parasite, it no longer responds to them. It is ineffective. Basically, it is useless. That is known as antimicrobial resistance. यहाँ पे मैंने कुछ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म के नाम एग्जिस्ट किए हैं जो रिसेंटली जुलाई 2024 में सीडीसी अमेरिकन गाइडलाइन से हमें बताया है. इंडिया वी आल्सो गेट दिस इन इंडिया ऑफ कोर्स. I've enlisted few carbapenem resistant CREs, Candida auris, Acinetobacter, MRSA, VRE, ESBL, and Pseudomonas aeruginosa. On a very high level, we find these MTROs now. Dangers. Now सबसे पहला danger जो human life को है वो है death. So because of MDR, what is happening? A lot of serious dangerous infections, example sepsis is happening, and because of this, because no antibiotic is left to treat these patients anymore, no effectiveness. So what is happening ultimately? तुम operation करो, तुम कुछ भी करो, but ultimately क्या हो रहा है? These patients land up without any options, limited options. So what is happening? If you can see, I have collated the data. 2019 का data है 1.2 million global deaths. That's a huge number, and contributed to 4.95 million deaths. This is a huge number, and let me tell you, I am a clinical microbiologist, and even today, every day, whatever patient ka reporting I'm doing, majority 98%, I'm not kidding, 98% पूरा resistance profile निकलता है. And when doctors give me a call and tell them what should we do, that is when this what should we do, this big question mark, when doctors call me, when the technicians call me, everyone calls and says we don't have any treatment left. So इसका आंसर जो है वो एक ही शब्द में नहीं बोल सकते. That is why we are here discussing what to do. Okay, and the dangers are not. सबसे पहला तो danger बता दिया है death. Okay,
एंड सेकेंडली इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सपेंसेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, भाई आपका खर्चा भी बहुत बढ़ रहा है बिकॉज आप ट्रीट ही नहीं कर पा रहे हो पेशेंट्स को बिकॉज ऑफ दीज MDROs. Then limited treatment options, even doctors are not left with any option कि भाई ट्रीट करे तो क्या करे, सब कुछ रेजिस्टेंस है, सारे एंटीबायोटिक यूजलेस है, इन्फेक्शंस बिकम डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू ट्रीट. ओके, नाउ व्हाई AMR इज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, व्हाई इज इट इंक्रीजिंग. यहाँ पे ये टॉपिक शॉर्ट में बता रही हूँ, आगे जाके इसका पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग. मिसयूज एंड ओवरयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये तो आपने सुना ही होगा. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मिसयूज ओवरयूज एंटीबायोटिक्स. क्या है एग्जैक्टली बताती हूँ. Over the counter prescriptions, poor hospital infection control measures. This third point is brutally and royally ignored in our country, and not only in our country, globally, but especially in a country like India, hospital infection control को बिल्कुल importance नहीं दिया जाता है. And आज मैं आपको इसका importance बताना चाहती हूँ कि इससे how AMR is related. Lack of education. That is why we are here. नो एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप. अब ये शब्द क्या है, अगर पहली बार सुना है तो इसका आगे थोड़ा और डिस्क्रिप्शन है. सो लेट अस सी व्हाई दिस इज इट. Okay, I have put a picture here, examples of how antibiotic resistance spreads. Now what happens is, एक बहुत common question आता है, बहुत common question. Why multi-drug organism, why मेरे patient? Every doctor, almost every doctor of each hospital clinic, they have given me a call. मेरे patient को कैसे, कहाँ से? So the answer is, I'll tell you, generally, in general, आपको अगर is the picture audible? Is the picture visible, Komal? Yes, the picture is visible, Dr. Kedari. Yeah. So if you can see, people बीच में उस hexagonal diagram से start करते हैं. Those are antibiotics. Now I'll try to explain it to you, break down the picture like this. You can see Mr. George. हम Mr. Ganesh या गगन ले लेते हैं. So there's a Mr. George और Mr. गगन at the right side, and there's a poultry. आपको animals की photos दिखाई दे रहे हैं. Chicken, pig है, cow है वहाँ पे. So let's start with poultry, क्योंकि ये point किसी ज्यादा लोगों को पता नहीं है. इंसान एंटीबायोटिक लेते हैं ये पता है, but let's start with the left side of the picture first. Now what happens is, I don't know how many of you all know this, but ताकि पोल्ट्री जो है, जो चिकन है, हैम है, फॉरेन की बात करें तो बीफ है, तो एनिमल्स को एंटीबायोटिक दिए जाते हैं सो दैट पूरे उनके रेयरिंग में जो उनका जो पूरा पोल्ट्री है उसके दौरान उनको इन्फेक्शन ना हो, सो दैट दे डोंट गेट इन्फेक्टेड. That is why they are given antibiotics, and not just, let me tell you this, not just basic antibiotics, broad spectrum antibiotics. In fact, colistin जो सबसे highest, जो life saving drug है, वो भी दिया जाता है. If you will read the articles, you will see this, that colistin is also given to poultry. Now what happens? Poultry ये सब antibiotics लेते हैं. Now poultry अपने species में when they उनका excreta जब mix होता है water से या फिर soil से, so this soil, this water, this excreta is mixed with the vegetable crops. मैं आपको एक बात बता दूं, ये बोलने के बाद I'm sure if there are vegetarians out there, I'm sure they must have said मैं तो non-veg नहीं खाती, तो मेरा इससे कुछ संबंध नहीं. बट माय डियर फ्रेंड्स, सैडली जो यहाँ पे वेजिटेरियंस भी है उनको भी इनके इनडायरेक्ट बैक्टीरिया मल्टी ड्रग वाले आ रहे हैं. हाउ? बिकॉज व्हेन दे जब ये एक्सक्रीट करते हैं, जब इनका यूज किया वाटर, जब सेम वाटर क्रॉप्स को दिया जाता है, वो माइक्रोब्स वही क्रॉप्स में जाते हैं, बैक्टीरिया ट्रांसफर इनमें भी होता है. सेम वेजिटेबल्स क्रॉप्स आप खाते हैं, तो वेजिटेरियन लोगों को भी आ रहे हैं, मीट से डायरेक्टली भी आ रहा है. So that's how the left side of the picture is. ऑटोमेटिकली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, आपको आप कोलेस्ट्रॉल खा नहीं रहे हो लेकिन आपको उसका रेजिस्टेंस आ रहा है. लेट्स लुक एट द राइट साइड ऑफ द पिक्चर नाउ. मिस्टर जॉर्ज या मिस्टर गगन अपने जो भी है, तो नाउ अभी ऐसा है कि वील टॉक अबाउट ओपीडी पेशेंट. ओपीडी पेशेंट मतलब जो हंसता खेलता है, उसको थोड़ी बहुत बीमारी हो गई है, वो अगर ओपीडी बेसिस बोलते हैं तो उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं. तो अगर किसी को खांसी है या बुखार है और अगर उनको ओपीडी में जाके कभी, let me tell you that even community acquired, now we are getting multi drug resistance. There was a time when we used to get sputum samples में infection sensitive to all. These days we are getting
घर पे जो आदमी है जिसके स्पूटम में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया, इवन दैट इज मल्टी ड्रग, नॉट अ सिंगल ड्रग इज एक्टिंग अगेंस्ट इट. व्हाई? बिकॉज आई टेल यू, ये पूरा ये राइट साइड का सर्कल, लेट मी टेल यू. नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे लिखा है जॉर्ज स्टेज एट होम इन जनरल कम्युनिटी स्प्रेड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. क्यों? बिकॉज ये जो भाई साहब है, इनको कभी ना कभी लाइफ में एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं. एंड सैडली मुझे ये कहना पड़ता है कि अपने इंडिया में कभी ना कभी अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स भी दिए गए हैं. सो ये, जैसे कि समर चेंज होता है, मतलब सीजन चेंज होता है, थोड़ी सी भी खांसी आ गई तो लोग एंटीबायोटिक लेके खुद खुद प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन होता है. कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी कभी उन लोग अननेसेसरी एंटीबायोटिक शायद दे देते हैं. दैट इज नोन एज मिसयूज. तो ये एंटीबायोटिक्स खा के कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है ये फैला रहे. तो ये अगर बाय चांस ये व्यक्ति भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो वो ऑलरेडी जो बैक्टीरिया कम्युनिटी से लेके आए हैं वो हॉस्पिटल में भी फैला रहे हैं. वो हॉस्पिटल में कैसे फैल रहा है? अभी नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर योर, if you can see my cursor, resistant germs spread directly to other patient. अब ये जॉर्ज जो लेके आए हैं तो वो इन्फेक्शन बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी लग रहा है. हमको ये आंखों से बिल्कुल दिखता नहीं है. These germs are not seen by, these are not visible by eyes. That is why it is more dangerous. But yes, we have a chance, we have a way to combat this. तो अभी ये जो एडमिट हुए हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी ये स्प्रेड होता है. व्हाई? बिकॉज दे टच, दे हैंडल द पेशेंट. और इनको हैंडल करने के बाद ना ये हाथ साफ करते हैं, ना हैंड वॉश होते हैं, ना ग्लव्स पहनते हैं. तो ये बेसिक चीजें हैं कि ये पेशेंट से डॉक्टर, एक सिस्टर, एक नर्स या रिलेटिव जो उन्हें एडमिट कर रहा है उनको ये कैसा फील रहा है. अब ये भी बाहर लेके जाते हैं कम्युनिटी. यहाँ पे इफ यू कैन सी, पेशेंट गो होम. ऑब्वियसली जब एडमिट है हॉस्पिटल में तो उनको देखने के बाद, उनको टच करने के बाद, हाँ सब ठीक हो जाएगा, ये सब करने के बाद these patients go out, they carry the multi drug resistance, they spread it. ये साइकिल चलती आ रही है. So this is the cycle which I wanted to tell you examples of how antibiotic resistance spreads. Now we'll go a little ahead. Komal, do we have any doubts till now? No, Dr. Kedari, we don't have any doubt. Okay. If anyone want to ask anything, they can. At this point, do anyone ये बहुत सिंपल सा बात था जो मैंने साइकिल से समझाया कि कैसे एक घर पे बैठे हुए आदमी को भी मल्टी ड्रग ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन या ट्रांसफर हो सकता है. इस पॉइंट पे अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, मैं अभी क्लियर कर दूंगी. यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑल्सो. Dr. Kedari, I think we can continue. If anyone wants to ask anything, they can write it down in the chat box. Sure. अभी mechanism of AMR बहुत ही short में I'm going to tell you because this is not the main discussion topic today. But as we are discussing AMR, let me just jot down. There are two types of mechanism: intrinsic, मतलब जो naturally coded है, और acquired. Acquired जो है वो mutation और horizontal gene transfer से आता है. Now people, let me tell you that ये resistance हो ही क्यों रहा है. Obviously, I told you about the danger effect. Danger क्या हो रहा है? Why people are dying? कैसे spread हो रहा है? But now, why this is happening and how this is happening? Very simple. Are you? What happens is bacteria are very intelligent enough. भगवान ने इनको 100 ग्राम दिमाग ज्यादा दिया है. क्या होता है कि whenever we whenever we have antibiotics, whenever we expose ourselves to antibiotics, they obviously kill. Starting में तो वो kill करेंगे, but 1% रेजिस्टेंस ट्रेन इनमें हमेशा रहता है जो बहुत स्मार्ट है. एंड दे ऑलवेज वांटेड टू टेक रिवेंज. क्यों दिया एंटीबायोटिक दिया ही. सो दीज 1% व्हाट दे डू, दे स्टार्ट क्रिएटिंग मैकेनिज्म्स सो दैट अगली बार आप यही एंटीबायोटिक देंगे तो उसको, मतलब दे वोंट बी एबल टू किल दैट बैक्टीरिया. सो दे आर दैट रिवेंज टेकिंग. सो व्हाट हैपेंस इज, उसमें से 2-3 मैकेनिज्म है, बहुत ही शॉर्ट में आई टेल यू. By prevention of antimicrobial from reaching its target by reducing its ability to penetrate into the cell. Now, Pseudomonas और Enterobacter Klebsiella, ये बैक्टीरिया जैसे काम करते हैं. ये क्या करते हैं कि कभी कभी अपना जो सेल वॉल होता है उसको या तो उसकी साइज बढ़ा देते या तो कम कर देते अकॉर्डिंगली, सो दैट व्हाट हैपेंस, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाया. अगर एंटीबायोटिक पेनिट्रेट नहीं कर पाया तो क्या ही काम करेगा.
So this is one mechanism, brilliant idea. Second is efflux pump. Now what is efflux pump? Kabhi kabhi what happens is whenever this bacteria enters, obviously whenever this antimicrobial enters cell wall, अभी cell wall के अंदर गए, वहां पे एक्शन लिया, it kills bacteria. But अभी हम लोग बोलते हैं ना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, ये हमारे में कहावत है. बैक्टीरिया भी सेम फॉलो करता है. वो क्या करता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया अपने बॉडी पे इफ्लक्स पंप बना देते हैं. तो व्हाट हैपेंस, यहाँ से एंटीमाइक्रोबियल मतलब हमारे एंटीबायोटिक यहाँ से काम करेंगे एंटीबायोटिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, और बिकॉज उन लोग ने पंप बना दिया है, वही पंप से वो एग्जिट पाए. तो क्या, so बैक्टीरिया के अंदर फिर हमारा the antibiotic is not staying, it is not retaining in that bacteria कि वो काम करता है. How brilliant the mechanism is. So E. coli, Enterobacteriaceae, Staphylococcus, ये सब यही mechanism efflux पे काम करते हैं. And by modification of antimicrobial target, ये बहुत important point है, because MRSA अगर आपने सुना ही होगा, MRSA is a very dangerous infection. स्टेफाइलोकोकस की वजह से होता है. So what they do is, there was a time जब few decades ago जब penicillin, the simplest of all antimicrobial, एक simple स्टेफाइलोकोकस infection होता था, penicillin देके it used to work brilliant. आज penicillin is literally useless. Why? Because इतने सालों से हम penicillin देते रहे, स्टेफाइलोकोकस said what? What it started doing, अपना जो टारगेट साइट था, जिस टारगेट पे वो वार करता था पेनिसिलिन, उस टारगेट साइट को ही स्टेफाइलोकोकस ने बोला हम चेंज करते हैं, तो आपको मिलेगा ही नहीं. तो व्हाट हैपेंड इज द पीबीपी प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन साइट जो है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ने इसको चेंज ही कर दिया. चेंज ऐसा किया कि अभी पेनिसिलिन उसको अटैच ही नहीं हो सकता. इट इज नाउ नोन एज PBP2A. So this is how the virus, the bacteria is way more smarter than us. वो हर किस्म का नुस्खा यूज करता है कि how we will get over your antibiotic. आपके एंटीबायोटिक को कैसे ये करना है. So but उनको ऐसा लगता है कि they are smarter than us, but we are smarter than them. We can use certain mechanisms and certain treatments, certain things कि हम ये avoid करें. So we should do that, because we are not doing it, वो जीत उनकी हो रही है. These are few classification of beta lactamases. I will just name out so you would know. जैसे ESBL में KPC, Klebsiella pneumoniae, IMA, IMI, में metallo-beta lactamase में NDM is New Delhi metallo-beta lactamase, oxacillinase. These are some of the bacteria. These are some of the beta lactamase. डायग्नोसिस ऑफ AMR इन लैब. अभी क्या होता है कि ऑब्वियसली जब सैंपल आया जाता है, वी एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट टेक्नीशियन है या फिर अगर आप किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अंडर काम करते हो, तो आपको ये टेस्ट पता होंगे. डिस डिफ्यूजन मेथड्स करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो डाइल्यूशन मेथड्स करते हैं, जिसमें आपने अगर सुना होगा, मैंने कोलिस्टिन का नाम लिया था. कोलिस्टिन इज द ड्रग सेविंग, लाइफ सेविंग ड्रग फिलहाल के इसमें. लेट मी टेल यू साइडली कोलिस्टिन का भी रेजिस्टेंस आ गया. मुझे जिस दिन मेरे लैब में कोलिस्टिन रेजिस्टेंस मिल जाता है, उसी दिन सैडली आई नो कि 48 आवर्स के अंदर इस पेशेंट की डेथ यूजुअली हो जाती है. दिस इज हाउ डेंजरस इट हैज बिकम, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट प्रिवेंटिंग AMR. ई टेस्ट ऑटोमेटेड मेथड्स आपने अभी कल्चर सेंसिटिविटी में देखा ही होगा, MIC करके आता है. MIC is you get this by Vitek or Phoenix BD. So इन सारे टेस्ट से हमको पता चलेगा कि कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है या नहीं. तो ये टेस्ट करने चाहिए, स्पेशली डॉक्टर्स को प्रमोट करने चाहिए ये टेस्ट, so that they bring out a better outcome. Okay, coming to the main part. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, इसमें एनी डाउट, बिकॉज वो मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया है. नाउ आई वांट टू कम टू द प्रिवेंटिव एंड मैनेजमेंट पार्ट. डज एनीवन हैव एनी डाउट अबाउट AMR, और शुड आई जस्ट प्रोसीड टुवर्ड्स द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट? कोमल, You can proceed. I didn't receive any doubt yet. okay.
सबसे पहले अगर हमको ये दिस इज अ ग्लोबल ट्रेंड, इट इज ऑन अ बिग लेवल, और अगर हमें कोई भी चीज बिग लेवल पे करनी है तो हमको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस चाहिए। तो उसके लिए वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। अगर आप किसी हॉस्पिटल से हो, अगर आप किसी क्लिनिक से हो, उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उस एडमिनिस्ट्रेशन को इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक देम रियलाइज। I am sorry to say, but yes, when I was a student and I used to and we used to struggle. We used to struggle to let the administration know कि what is happening, why आप हम reports भेज रहे हैं, drug एक भी sensitive नहीं आ रहा है, and why the patients are dying even after operation is done, even after everything is done, but nothing is sensitive. No bacteria is sensitive for the infection they are having. So that is why administrative support बहुत जरूरी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही इज नॉट सपोर्टिंग यू, देन इट इज, ट्रस्ट मी, वेरी डिफिकल्ट। मेंटालिटी बहुत जरूरी है, मेंटालिटी, एक्सेप्टेंस टू दिस पार्ट दैट यस दिस इज अ ग्लोबल थ्रेट, यस वी आर फेसिंग अ रियली डेंजरस सिचुएशन, तो उसका मानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आगे के वंस यू एक्सेप्ट थिंग्स, आगे के स्टेप्स बहुत। एजुकेशन जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, so it is actually my privilege to tell you all as a microbiologist what is the importance, what is happening in the world, in India, in your neighborhood. So when you educate the people, तो ही आगे कुछ होने वाला है। Okay, now use of judicial antibiotics. If you remember, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि AMR बढ़ क्यों रहा है, misuse and overuse of drugs। अभी अभी हमको यूज ऑफ जुडिशियल एंटीबायोटिक्स करना है। जुडिशियल एंटीबायोटिक्स व्हेन आई से, इसका मीनिंग क्या है, वी हैव टू जस्टिफाई, वी हैव टू मेक जस्टिस टू व्हाट एंटीबायोटिक्स वी डॉक्टर्स आर यूजिंग। तो उसके लिए इफेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। व्हेन आई से इफेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल, फॉर एग्जांपल, मैं हर चीज आपको एग्जांपल देके बताना चाहती हूँ। मुझे ये ऐसा लेक्चर नहीं बताना जहाँ पे मैं पीपीटी बना रही हूँ और आपको एक एक पॉइंट बोल रही हूँ। तो ऐसा है कि नाउ सीजन चेंज होते ही रहता है। ओके, थोड़ा सा सोर थ्रोट क्या हो गया, थोड़ा सा आप जाते हो ओपीडी में, या फिर आप गूगल करके आप खुद ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हो। ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिकल स्टोर वाला भी दे देता है। मेडिकल स्टोर ऑल्सो गिव्स यू थोड़ा सा खराश है, ये एंटीबायोटिक 3 दिन ले। वेल, व्हाट आई वांट टू टेल यू, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप सुन रहे हैं, प्लीज टेक होम दिस मैसेज, दैट वो कॉमन फ्लू भी हो सकता है। अगर आपको सोर थ्रोट है, अगर आपको थोड़ा सा फीवर है, इट कैन बी कॉमन फ्लू ऑल्सो। डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब। अगर फीवर बहुत ज्यादा है, अगर आपका इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा है, तो डॉक्टर वुड नो एंड दे वुड गिव एंटीबायोटिक्स आफ्टर कन्वेंशनल मेथड्स आर डन। प्लीज ट्राई कन्वेंशनल मेथड्स पहले, बेसिक स्टीम, घर का फ्लूइड लेना, हॉट वाटर गार्गल्स या सॉल्ट वाटर गार्गल्स, बीटाडिन गार्गल्स, दिस इज वेरी नॉर्मल, बट अवॉइड द एंटीबायोटिक initial treatment. Okay, and use of narrow spectrum agents, treatment of infections and not contaminants. This is a very important point. And अगर यहाँ बैठ के अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी एमडी डॉक्टर है या स्टूडेंट है या टेक्नीशियंस है, उनके लिए ये पॉइंट बता दूं कि जब कल्चर भेजा जाता है, तो जैसे कि यूरिन सैंपल्स है, स्पूटम सैंपल्स है, स्टूल सैंपल्स है, इसमें बहुत चांसेस है कि कॉमेंसल्स ग्रो होंगे। So a clinical microbiologist has the knowledge कि ये commensals है, ये pathogen, so that's how they report accordingly. कई बार क्या हो जाता है कि कहीं कहीं कुछ सेटअप्स में माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर्स नहीं होते हैं, yes it is a fact, and contaminants या commensals रिपोर्ट हो जाते हैं। What happens कि आपका जो commensal डाला गया है एंटीबायोटिक, उसके अगेंस्ट उसका सेंसी रिपोर्ट आ जाता है, and then doctor will trust you, doctor will start giving antibiotics against your own common flora. इसलिए it is very important to find a good clinical laboratory जहाँ पे a good clinical microbiology setup is there. Avoiding excessive duration of therapy, very 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 important. It is very sad that some doctors are also, majority of the doctors are trying to control AMR, but yes, let me be very honest, some doctors are there जो excessive duration of therapy दे देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक सेटअप, देयर वाज दिस मीटिंग जहाँ हम लोग एंटीबायोटिक्स का ही मीटिंग ले रहे थे। वहां पे एक डॉक्टर ने बोल दिया था कि
हम ऑपरेशन के बाद 10 दिन का एंटीबायोटिक दे ही देते हैं. So that is when that is कुछ सेटअप्स में अंडरस्टैंड, बट देन इसका एक एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप जो होता है, यू नीड टू जस्टिफाई कि आप 7-10 दिन तक एंटीबायोटिक क्यों दे दे रहे हो. Some people give antibiotics for 15 to 20 days. Yes. So that's what I'm saying, and I'm openly saying if any clinician, any surgeon is listening to this, you need to know that I understand that in India certain setups are different, and to avoid future infections, you might give antibiotics for a longer period of time, but it has its own side effects. Restricting use of broad spectrum or more potent antimicrobials to treatment of serious infections and pathogens, ये already मैंने discuss कर दिया. So this is what I want to tell you, doctors, how to justify antibiotics. MDRO surveillance. अभी ऐसा हो गया कि हर हॉस्पिटल में MDRO सर्विलेंस, हॉस्पिटल इंफेक्शन कमिटी होनी चाहिए. हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक में होना चाहिए. व्हाट इज अ हॉस्पिटल इंफेक्शन कमिटी? इट इज अ कमिटी जहाँ पे एक MD क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड सिस्टर इंचार्जेस, या ये सबका एक कमिटी बनता है. एंड HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑल, सर्जरी हो गया, गायनेक हो गया, मेडिसिन हो गया, इनकी एक हॉस्पिटल इंफेक्शन कमिटी बनती है. ये कमिटी को एवरी मंथ कंपल्सरी गवर्नमेंट में बोला है कि आपको बैठना है और सर्विलेंस निकालना है. और इस सर्विलेंस में सबसे बड़ा हाथ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड अपने माइक्रोबायोलॉजिस्ट टेक्नीशियंस का है. आपको मिलके ये डेटा बनाना है कि आपको जो स्पूटम, ब्लड, यूरिन, जो भी कल्चर्स आ रहे हैं फर्स्ट, उनमें ये डेटा निकालना है कि सबसे ज्यादा कौन सा MDRO निकलता है, क्यों निकल रहे हैं, कितना निकल रहा है, और जो अलार्मिंग रेट है वो अलार्मिंग रेट आपको हॉस्पिटल्स को बताना है. ये आजकल हो रहा है और हर बड़े हॉस्पिटल में ये होता है. This will give you a picture. This will give you a backdated picture. See what is happening, and if and care is to be needed, या फिर red flag ये नहीं है. Red flag is when your hospital infection goes above 5%. Government says हर hospital में 5% के नीचे होना चाहिए contamination rate. Contamination rate should be below 5%. Okay. नाउ हम बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट समटाइम्स गिव्स crores and crores of money to BMC and to government setup ki do this precaution, do that precaution. But people, let me tell you, the precautions start at a very simple basic level, as simple as washing your hands. अगर हर health care personnel, I'm talking about hospital because we are talking about MDRO here. एंड अगर किसी एपिडेमिक या एंडेमिक टाइम, फॉर एग्जांपल अगर कॉमन फ्लू के सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं, तो एक कॉमन पब्लिक को भी थोड़ा हैंड वॉश, हैंड हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए. ये कर लिया तो हमें क्रोर्स एंड क्रोर्स पैसे खर्च करने की, टेस्ट पे खर्चा करो, ICU के बेड पे खर्चा करो, वी विल नॉट नीड दिस. यू नीड टू अंडरस्टैंड अ बेसिक हैंड वॉश, हैंड हाइजीन. एंड let me tell you the 5 moments of hand hygiene. These 5 moments are only taught in hospital infection control programs, जो आपको शायद चांस मिलता भी है या पता भी नहीं रहता. तो मैं आज आपको बताती हूँ कि वो 5 moments क्या है. No, I'm not talking about the hand wash steps. वो hand washing steps आपको proper follow करने ही है. But 5 moments मतलब आप एक डॉक्टर को या एक नर्स को या एक रिलेटिव को कब कब हैंड वॉश करता है. So, Komal, is this picture audible? Because is this picture clear? Is visible, yeah. Okay. So, अगर आप देख सकते हैं, ये पेशेंट एक ICU में बैठे हैं, ICU में एडमिट है. So, the first point is says before patient contact. For example, let me just tell you a simple scenario. हमारे कंसल्टेंट आते हैं ICU में, आते हैं, आपको भी पता है एडमिट होते हैं तो डॉक्टर्स लोग राउंड पे आते हैं, राइट? ये डॉक्टर्स के लिए और नर्सेज के लिए मुझे बोलना है कि अगर आप ICU में एंटर करते हो, चलो वार्ड में एंटर करते हो, तो बिफोर कॉन्टेक्टिंग द पेशेंट, आप पेशेंट को टच कर रहे हो उसके पहले ही आपका 70% अल्कोहल वहाँ पे रखा रहता है. नहीं रखा है, मंगवा लो, आपका ही बेटरमेंट है. तो 70% अल्कोहल से हैंड डिसइंफेक्ट ओके करना है. सेकेंड इज बिफोर असेप्टिक टास्क. नाउ समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट गैस मार जाता है. अगर ऐसे गैस मार जाता है, the patient is sometimes not able to breathe, और sometimes patient का RT डालना होता है, उल्टी कर देता है पेशेंट अनकॉन्शियस में, तो
there are many emergency situations जहाँ पे पेशेंट की जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट उनको याद रहता है, बट वो बेसिक भूल जाते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल की यू ऑल्सो हैव टू डिसइंफेक्ट योर हैंड्स फर्स्ट। तो बिफोर एनी असेप्टिक टास्क, कुछ भी आप पोली कैथेटर भी डाल रहे हो ग्लव्स पहन के, अल्कोहल से हाथ ये करके डाल, सिर्फ ग्लव्स पहन के काम नहीं करता है, यू हैव टू सैनिटाइज योर हैंड्स बिफोर एनी असेप्टिक टास्क। थर्ड इज ऑब्वियसली आपने टास्क कर लिया है तो आपके हाथों को ऑब्वियसली बॉडी फ्लूइड या पेशेंट का कुछ भी पैथोजेनिक फ्लूइड लगा है, दिख भी नहीं रहा होगा मुझे हमेशा क्या। so let me tell you something, I am infection control officer and I take regular rounds in hospital। तो मुझे एक दिन एक सिस्टर ने क्या बोल दिया था, मैडम हमको हाथ में नहीं दिखता है, एंड दे वर नॉट फॉलोइंग हैंड हाइजीन, दीस मोमेंट दे वर नॉट फॉलोइंग हैंड हाइजीन, और उनके आईसीयू से मुझे ज्यादा कंटेमिनेशन रेट मिला था। तो दैट इज व्हेन आई केम टू नो, और मुझे रीजन क्या दिया गया था, ग्लव्स पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, अगर मुझे ग्लव्स पे दिखे तो मैं साफ, मतलब पेशेंट को हाथ लगाने के बाद भी साफ नहीं किया जाता। ठीक है, पेशेंट की गलती नहीं है, उनको सॉरी नर्स की गलती नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं दिया है। सो आई वांट टू टेल यू बैक्टीरिया दिखते नहीं है। If you are touching, handling the patient, and if your gloves are not soiled, still please, after doing any task, after touching the patient, after doing any exposure risk, please sanitize your hands even if they are not soiled. Fourth is after patient contact. Now if you are not doing any आरती नहीं लगा रहे हो, पोलिस नहीं चढ़ा रहे हो, या फिर कुछ भी जेल को नहीं लगा रहे हो, बट एटलीस्ट आपने पेशेंट के सराउंडिंग्स को भी टच किया है, आपको फिर भी हैंड हाइजीन करना है। And when I talk about surroundings, if a doctor is just going just to see how the patient is doing clinically, अगर उनको देखना है कि सिर्फ मुंह दिखाई करने आए, बट फिर भी ट्रस्ट मी वो बेड रेलिंग को तो हाथ लगाते, बेड रेलिंग एंड ट्रॉलीज आईसीयू एंड वार्ड के हार्बर मैक्सिमम ऑफ द बैक्टीरिया वी हैव कल्चर। हम रैंडमली अगर जाके मैंने स्वॉब्स खुद लिए थे एंड वी हैव कल्चर्ड जस्ट टू शो पीपल दैट प्लीज स्टार्ट यूजिंग, स्टार्ट क्लीनिंग। सबसे पहले तो वार्ड बॉयज को एजुकेट किया गया है कि यू हैव टू क्लीन द सराउंडिंग्स बाय डिसइंफेक्टिंग। सेकेंड चीज, डॉक्टर्स को बोला गया सी व्हाट वी हैव कल्चर्ड ऑन फ्रॉम बेड रेलिंग, तो आपको टच किए भी तो आपको हैंड वॉश करना है। ये सारा क्यों बता रहे, बिकॉज दीज आर नथिंग बट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पेन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, अभी मैंने ग्लव्स की बात की, तो बहुत सारे सेटअप्स में ऐसा रहता है कि ग्लव्स अवेलेबल नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। आई नो सम इन सम सेटअप्स ऑफ इंडिया ग्लव्स अवेलेबल नहीं है, शू कवर्स अवेलेबल नहीं है। आई अंडरस्टैंड, मुझे कभी कभी ये बोला जाता है, बट देन अगर आपके पास अवेलेबल है तो पहनो। समटाइम्स आपके पास अवेलेबिलिटी होने के बाद भी मैंने खुद नोटिस किया है कि नो वन इज वेयरिंग ग्लव्स, ऐसे ही हाथों से आरती चढ़ाया जा रहा है। नो वन इज वेयरिंग शू कवर्स इन आईसीयू। कभी कभी आईसीयू में रिलेटिव्स को जब उनका विजिटिंग टाइम होता है, विजिटिंग टाइम के वक्त भी आईसीयू में बोलना चाहिए कि आपको हाथ डिसइंफेक्ट करके जाना है और बाहर निकलना है। और बाहर के जूते चप्पल जो भी है वो भी आईसीयू में लेके जाते हैं। माय डियर पीपल, आई वांट टू टेल यू दैट असानिटोबैक्टर, सूडोमोनास, ये जो मल्टी ड्रग ऑर्गेनिजम्स है, ये इनका मेन ओरिजिन सॉइल है। असानिटोबैक्टर जो किल भी करता है अगर बहुत सीरियस हुआ, जो ब्लड में भी मिलता है, दिस इज फाउंड इन सॉइल। अगर इसलिए मुझे एक बार एक क्लिनिशियन ने पूछा था, मैडम अगर बाहर के जूते पहन भी लिए तो क्या कर सकता है? मेरा ये आंसर है, मैंने कुछ नहीं बस कल्चर किया, असाइनोटोबैक्टर दिखाया। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आप जो बाहर चलते फिरते हाथ ये करते हो, वो अंदर आप आईसीयू में लेके आते हो या फिर आईसीयू से आप बाहर लेके जाते हो। दिस इज हाउ इट इज स्प्रेड, सो यू हैव टू यूज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ एमडीआर। ओके, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस एंड आइसोलेशन। अभी देयर आर सर्टेन जैसे कि एमआरएस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, VRE, vancomycin resistant enterococcus, these are very lethal and ये सिर्फ और सिर्फ contact से spread होते हैं। So sometimes what should be done if any microbiologist is or if any sister or if any technicians आपको भी ये पता रहना चाहिए कि अगर आप किसी भी blood या UTI या पल्स में आप अगर MRSA डिटेक्ट करते हो
तो आपको सामने वाले डॉक्टर को या फिर रिपोर्ट पे ये मेंशन करना है, काइंडली टेक कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, काइंडली आइसोलेट द पेशेंट। और ये अगर आपकी क्लिनिक, अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो और लैब भी हॉस्पिटल में ही है, तो जाके या फोन करके प्लीज टेल द डॉक्टर या सिस्टर की इसमें ये इन्फेक्शन आया है, वो कम्युनिकेशन रखना है। इफ यू डोंट कीप दिस कम्युनिकेशन, किसी को भी, लेट मी टेल यू, इतना no one has that much time to read that one line, kindly correlate clinically, kindly take contact precautions. No, people don't have time. Take that much effort which we do. Call the department, call them and tell them कि MRS से आया है, इतने में आपके MRS से निकल रहे हैं, please isolate the patient. अगर आपके ही सेटअप में वो है तो। अगर आप डॉक्टर्स हैं, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, तो आपका तो ड्यूटी ही पहला बनता है कि कॉल द इंचार्ज ऑफ द डॉक्टर, कॉल द एडमिनिस्ट्रेशन, लुक इनटू इट, व्हाई किसी एक वार्ड में, व्हाई किसी एक आईसीयू में इतने सारे पेशेंट्स एक ही बैक्टीरिया से और एक ही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से निकल रहे हैं। दैट इज वेयर द इंटरवेंशन शुड बी टेकन। एंड व्हेन आई से डेजिग्नेटेड इक्विपमेंट, अब जब आप आइसोलेट करते हो या फिर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेना चाहते हो, तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस के वक्त ग्लव्स, आपको गाउन, ये सब पहननी है अगर आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, या फिर आपको भी वो हार्बर हो जाएगा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। एंड व्हेन आई से equipment, designated equipment, what I mean by this is, अगर सारे पेशेंट एमआरएसए के एक साइड बेड में लगा दें, तो उनका अगर बीपी लेना है, उनका थर्मोमीटर, फीवर चेक करना है, तो ये सारे अलग रखे जाते हैं। बिकॉज एज सिंपल एज थर्मोमीटर एंड बीपी के कप जो आप इनको बांधेंगे और वापस नॉर्मल पेशेंट्स को बांधेंगे, तो देयर यू गो, दिस इज हाउ यू आर ट्रांसफरिंग द पेशेंट्स, दिस इज हाउ यू आर ट्रांसफरिंग द बैक्टीरिया। This we would not even think about it, but आपको जब एजुकेट किया जाता है कि इतनी सिंपल चीजों से भी पास होता है, तो then you should take action. Now हमने बात की कि कैसे मैनेज करना चाहिए, अब मैं बात करना चाहूंगी कि हाउ टू प्रिवेंट, एक डॉक्टर लेवल पे, एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट लेवल पे और एक कॉमन मैन लेवल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द डॉक्टर्स रोल। आपको भी पता रहना चाहिए, एंड यस आई एम एजुकेटिंग यू टुडे। मैंने ये अपने राउंड देते वक्त हमेशा सुना है कि जब मैं आई टेक लेक्चर्स सिस्टर्स के थी, नर्सेस के, तो व्हेन हॉस्पिटल में जाके मुझे मैं जो उनको पूछती हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने वो डरते हैं बोलते थे कि मैं एक सिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर को कैसे बता सकती हूँ कि आपने जो हमको सिखाया कि ये प्रिकॉशंस है। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि व्हेन इट कम्स टू गिविंग नॉलेज, देयर इज नो सीनियर, देयर इज नो सुपीरियर, ओनली नॉलेज इज सुपीरियर। So I keep telling even the sister and nurses, you have the right, you have, in fact student भी, resident doctors, when I say resident doctors, that means ये students ही होते हैं जो अपने sir के सामने कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर आप कुछ भी एजुकेशन ले रहे हैं, then please tell your seniors, have that audacity to request your seniors कि आपने ये आज पढ़ा है, these are the precautions, this is what is to be done। अगर ये आप स्टेप नहीं उठाएंगे तो आगे ये स्प्रेड नहीं होगा। सो डॉक्टर्स, लेट्स स्टार्ट ऑफ डॉक्टर्स। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है, ग्लव्स, गाउन, इवन ग्लेस, अगर गॉगल्स जो रहते हैं वो भी पहनिए। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसा कोई प्रोसीजर कर रहे हो जिसमें स्प्लैटर हो सकता है, ब्लड स्प्लैटर हो सकता है, या फिर पेशेंट खांस सकता है, टीबी पेशेंट को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको आरटी डालने की जरूरत, कुछ भी, या फिर पेशेंट के सामने आपको कॉफ करना है, तो आपको यू हैव टू टेक ऑल दी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। देन जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स तो मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया है। एनकरेज कल्चर रिपोर्ट्स इन क्लिनिकल सेटअप्स, ये मैंने इसलिए पॉइंट डाला है क्योंकि क्लिनिकल सेटअप में बहुत बार ऐसे होता है, दिस इज फॉर डॉक्टर्स, आई डोंट नो इफ आई हैव एनी प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स राइट नाउ, बट कभी कभी डॉक्टर्स को लगता है कि इसका कल्चर नहीं करना चाहिए, मैं ब्लाइंडली अभी एक एंटीबायोटिक दे देता हूँ, ये चल रहा है, ये काम कर रहा है, देख लेंगे 7 दिन बाद। तो ये पहले चलता था डॉक्टर, लेकिन अब नहीं, बिकॉज अब यू हैव मेजॉरिटी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स। तो पहले जो हम दे देते ओपीडी लेवल पे एक दे देते थे, चलो ये काम करेगा, और करता भी था। अभी आई नो डॉक्टर्स, द थिंग इज, अभी प्रिवेंटिव मेजर्स पे दिए जा सकते हैं एंटीबायोटिक्स। आई एम नॉट सेइंग कि कल्चर रिपोर्ट आने तक वेट करो, आई एम नॉट सेइंग दैट,
बट कल्चर रिपोर्ट आने के बाद काइंडली प्लीज देखो कि जो आपने ड्रग स्टार्ट किया है वो सही में सेंसिटिव है, और अगर वो सेंसिटिव नहीं रेजिस्टेंट निकला है माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट में, तो प्लीज जाके उसको डी एस्केलेट कीजिए या फिर चेंज कीजिए, किसी और ऑल्टरनेटिव में कीजिए. दिस मेजर्स हैव टू बी टेकन नाउ. पहले ये नहीं लिए जाते थे, बट यस आफ्टर वी आर एजुकेटिंग मोर एंड मोर डॉक्टर्स, इवन डॉक्टर्स आर बीइंग कोऑपरेटिव and we want patients also to be cooperative rather than being irritated and why I am changed from antibiotic to antibiotic. My next point here is de-escalation of antibiotics. When I say de-escalation, so let me tell you what happens. आपको ये पता रहना चाहिए कि हर हॉस्पिटल का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है. पेशेंट आईसीयू में या वार्ड में एडमिट हुए फीवर के साथ एक प्रोटोकॉल रहता है, इसको ये एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना चाहिए. ठीक है, एवरी हॉस्पिटल हैज दैट वन. कभी कभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं तो बहुत सीरियस पेशेंट आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, होगा, उनका अपने भी रीजन होंगे. बट जब 5 या 3 दिन बाद आपको ब्लड कल्चर या किसी पल्स यूरिन का कल्चर मिलता है, उसमें अगर आपने देखा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, लेट मी टेल यू, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जब मैं बोलती हूँ मतलब हायर एंटीबायोटिक, अ लिटिल स्ट्रॉन्गर हायर क्लास ऑफ ड्रग, अगर वो एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, और अगर नैरो स्पेक्ट्रम, जैसे कि नैरो स्पेक्ट्रम मतलब बेसिक एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन हो गया, अपना एम्पिसिलिन हो गया, ये सारे बेसिक एंटीबायोटिक, सिप्रोफ्लोरोक्विनोलिन, सिप्रोफ्लोक्स, ये सारे बेसिक है. अगर कल्चर रिपोर्ट में आपको दिख रहा है कि बेसिक वाले एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, तो प्लीज डी एस्केलेट, मतलब आपने जो हायर एंटीबायोटिक चालू किया था उसको डी एस्केलेट करके एक सिंपल एंटीबायोटिक चालू कीजिए, बिकॉज आपको दिख रहा है कि कल्चर रिपोर्ट में वो सेंसिटिव है. ऐसा करने से आपको क्या होगा कि और सेविंग द हायर एंटीबायोटिक फॉर अ रियली सीवियर पेशेंट. क्योंकि आप प्लीज डॉक्टर्स एंड everyone who has the authority to sign out give prescription, I want to tell you, every patient you give antibiotic, it is having an effect on that 1% resistant bacteria. वो 1% resistant bacteria तैयार ही बैठा है, इसलिए आपको बहुत judicious रहना अपने कॉल के, when only whenever needed is these drugs to be used. on antibiotic stewardship, अब मैंने जो भी डिस्कस किया है, I have a picture actually, yeah. So what is antibiotic stewardship? एक प्रोटोकॉल रहता है. एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप इज नथिंग बट एक प्रोटोकॉल जो हर हॉस्पिटल में रहता है कि जो मैंने अभी बात की, डी एस्केलेट करना चाहिए. आई जस्ट डिस्क्राइब यू. शॉर्ट में बताना जाए तो उसमें 5 आर इंपॉर्टेंट है, 4 डी इंपॉर्टेंट है. कौन से 4 डी इंपॉर्टेंट है? ड्रग कौन सा स्टार्ट किया जाए, जो मैंने अभी आपकी डी एस्केलेशन की बात की, सिंपल वाला ड्रग देना है कि ये पेशेंट को सही में हायर एंटीबायोटिक चलेगा. सम पेशेंट्स को डायरेक्ट कोलिस्टिन स्टार्ट किया जाता है. पेशेंट आया फीवर के साथ आईसीयू में, डायरेक्ट कोलिस्टिन, दिस एंड इसको डी एस्केलेट भी नहीं किया जाता. मैंने खुद फोन करके कभी कभी या फिर खुद whenever I used to work in certain hospitals, खुद राउंड लिए हैं, जाके देखा कि डी एस्केलेशन हुआ है कि नहीं. तो जब सिप्रोफ्लोक्सासिन जैसा ड्रग सेंसिटिव था या मेरोपेनम भी सेंसिटिव था, these are थोड़ा कम कोलिस्टिन से, but still कोलिस्टिन was continued. So this is not to be done, doctors. Talk to your clinical microbiologist. Talk about antibiotic stewardship. Please be careful about how much you think about antibiotic resistance, not only saving the patient's life, because आगे जाके आप 10 जन मतलब 10 जनों को और रिस्क पे डाल रहे हो सिर्फ किसी एक को बचाने के लिए. So drug dosage, आप कितना डोसेज दे रहे हो, and delivery and duration. As I said, duration, तो just precaution लेने के लिए 10, 12, 15, 20 दिन नहीं देना है, सिर्फ जितना जरूरी है उतना ही duration का देना है. Responsibility, reduction, refinement, replacement, ये सब मैंने आपको just बोला है. And review. When I say review, हर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का एक रिव्यू होना चाहिए कि आप क्या ड्रग्स दे रहे हो, आप क्यों दे रहे हो. लेट मी टेल यू, अमेरिका में ये एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप बहुत सीरियसली फॉलो किया जाता है. इतना सीरियसली कि वहां पे एक फॉर्म रहता है जिसका फॉर्म का नाम ही है एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप. वहां फॉर्म में अगर आप पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वहां पे लिखना पड़ता है, और वहां की क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट का सिग्नेचर और अप्रूवल लगता है कि यस उन्हें भी ये जरूरी लगता है तो ही स्टार्ट कीजिए. इतना इम्पोर्टेंट अगर वहां पे चल रहा है तो हमें भी ये फॉलो करना चाहिए. एटलीस्ट थोड़ा तो भी सीरियसली स्टार्ट करना चाहिए ये लाइफ चीज.
ये ना डॉक्टर्स की बात। अभी रोल ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आई थिंक मैंने बात करते करते आपको ऑलरेडी बोल दिया कि क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या रोल है। सबसे पहले एनफोर्स एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप। लेट मी टेल यू, कुछ भी नया स्टार्ट करेंगे अभी ऑल ऑफ अ सडन मैं अगर किसी हॉस्पिटल में जाके बोलूंगी मेरी परमिशन लेना मेरे लिए, दिस डजंट वर्क। यू हैव टू, these changes are slow and steady. So enforce antibiotic stewardship. You have to make them realize. As a clinical microbiologist, take out the data. If you started working somewhere, आपको लगता है कि वहाँ पे नहीं हो रहा है फॉलो, बेसिक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है, हैंड वॉश नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स या डीएस्केलेट नहीं कर रहे हैं या फिर हायर एंटीबायोटिक पहले देते हैं, आप डेटा निकालो, बैठो डेटा निकालो, एनडीआरओ सर्विलेंस निकालो, आपके टेक्नीशियंस की मदद लो। योर टेक्नीशियंस आर द वंस हु आर एक्चुअली डूइंग द टेस्ट, वो भी बहुत मायने रखते हैं सब में। Enforce antibiotic stewardship. Fight for it. You have to fight for fighting resistance. Timely antibiotic susceptibility reports. Microbiologist, I want to give you this one request from my side. मैंने ये सुना है कि एक लैब है, वो लैब में अगर रिपोर्ट जाता है तो कल्चर रिपोर्ट 10-12 दिन के बाद आता है। तो मैं कल्चर भेज के क्या करूँ? आज मैं आपको डायरेक्टली ऑनेस्टली बता रही हूँ, किसी भी कल्चर रिपोर्ट का, चाहे वो यूरिन हो चाहे वो पल्स हो, 3 से 4 दिन में टैग है आ जाना चाहिए, और ब्लड रिपोर्ट 5 से 6 दिन में आ जाना चाहिए। ठीक है, 10-12 दिन नहीं लगते हैं। सो मुझे आपको बताना है माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस कि आप टेस्ट प्रॉपर करें, सही से करें और टाइमली करें, ताकि आप जब रिपोर्ट दें, ताकि वहां जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो आपके रिपोर्ट देख के टाइमली एक्शन लें। अगर आपका डिले होता है एक्शन 10-12 दिन, जो मुझे बहुत बार सुनाई देता है लोगों से कि हम क्यों नहीं भेज रहे कल्चर, 10-12 दिन कौन वेट करेगा? तो you are also you are also harming the entire cycle in a certain way because you are not cooperating your doctors. Help in de-escalation. For example, अगर जब मैं राउंड लेती थी मेरे सीनियर्स के साथ आईसीयू में, they were not de-escalating. You can't force them to do anything. You can never force anything to do. You always have to work as a team. चाहे आप वार्ड बॉय भी क्यों ना हो, मतलब एक वार्ड बॉय को भी टीम के साथ ही काम करना है। दिस इज एन एंटायर टीम, वार्ड बॉय से लेके हॉस्पिटल एचओडी तक। आप एक को और आपको एक समान, आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो हर पेशेंट के लिए, टू कॉम्बैट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, टू कॉम्बैट हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। सो आप जब जाते हो तो डी एस्केलेशन का महत्व समझाना है क्लिनिशियंस को। MDRO surveillance, save high-end drugs for emergency cases, maintain standard hospital infection control, and एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल को ऑफिसर को रोज राउंड लेने हैं एंड देखना है कि उन लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं, सारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ठीक से हो रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एन इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर एंड एजुकेशन ऑफिसर। When so now lastly I will talk about common man. भाई कॉमन मैन का भी उतना ही रोल है। नो ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन। एज आई सेड, गूगल नहीं करना है आपके प्रिस्क्रिप्शन, कुछ भी गूगल नहीं करना है। तो कंप्लीट द एंटीबायोटिक कोर्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मुझे खुद पेशेंट बोलते हैं व्हेन आई मैं जब ओपीडी में पेशेंट देखती हूँ, मुझे खुद पेशेंट बोल देते हैं, मैडम मुझे ठीक लग गया, 2 दिन में मैंने स्टॉप कर दिया खुद ही खाने का। या फिर व्हाट मुझे क्या एक्सक्यूज मिला है, कंटाल आ गया, 7 दिन नहीं खाना था, कंटाल आ गया, मैंने 3 ही दिन में स्टॉप कर दिया। या फिर जो भी है, एक ही डोज लिया, मैडम मुझे एक ही डोज में काम आ गया। अब एक ही डोज में चीज खत्म हो जाती है तो क्यों लेने 3 दिन के? ये कॉमन मैन का मिस्टेक नहीं है, ये मिस्टेक हमारा है, उन डॉक्टर्स का है जो उनको बताते नहीं है कि ये बीच में छोड़ना है। आपको अगर अच्छा लगता है फिर भी कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स अगर बीच में छोड़ देते हैं तो भी ये रेजिस्टेंस के प्रोसीजर को बढ़ाता है। तो आपको ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने हैं, एंटीबायोटिक कोर्स पूरा करना है और हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है। और यस, एज अ पेशेंट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि डॉक्टर्स, अगर आप जीपी लेवल पे जा रहे हैं और डॉक्टर्स एक कुड़ी में आपको कुछ बांध के दे रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां बांध के दे रहे हैं, आस्क देम, आप पूछ सकते हैं आप मुझे क्या दे रहे हैं। इट्स ओके, यू कैन आस्क द डॉक्टर्स मेरे को क्या ट्रीटमेंट दे। So this is what I want to say as a common man, as a doctor, as a microbiologist, as a hospital setup, how you can manage and prevent multi-drug resistant organism ka spread, so that how we can stop, how we can prevent
so many deaths that is happening in hospital every day because doctors have no option because no option is left. So मेरे तरफ से मुझे जो बोलना था important points मैंने बोले हैं. Can we have the doubts and questions? Anyone? Yes, we have Dr. Kedari. Okay, first I want to ask Mr. Anil Kumar. He has raised his hand. So, do you want to ask anything? Please open your mic and you can ask the question. Okay, I think it's by mistake. We are closing this query. Okay. Next, Dr. Kedari, we have are swabs recommended nowadays according to latest NABH guidelines? Okay. That's a nice question. Thank you for whoever has asked this. अभी ऐसा है कि latest guidelines. Can I ask? Are you asking for an operation theatre or are you asking for an ICU center? It's Dr. Madhusmita Das questions. Ma'am, please answer her query. Dr. Madhusmita, you can on your mic. It is related to hospital infection control. Yes. Okay, let me answer you in this way. So, if you are talking about operation theaters, so operation theaters का अगर आपको देखना है तो उसका swab कर सकते हैं तो recommended है air sampling. एयर सैम्पलिंग जो पूरे एयर चेंजेस का और पूरा अगर एयर में सस्टेनेबल कुछ बैक्टीरिया है आपका क्लीनिंग करने के बाद भी एयर चेंजेस या हेपा फिल्टर कर पा रहा है कि नहीं, तो ये ऑपरेशन थिएटर एयर सैम्पलिंग टेस्ट से समझेगा जिसमें एक स्ट्रिप होता है जिसमें मीडिया रहता है, एक मशीन रहती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से चलती है, वह टेस्ट करना पड़ता है जो 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाता है एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर जो इसके टेस्ट कर रहे हैं वो देखेंगे कि परमिसेबल लेवल्स आ रहे हैं कि नहीं, फंगस अगर है तो फंगस ग्रो हो रहा है तो वो ज्यादा रिकमेंडेड है इवन बाय द करंट नॉर्म. बट स्वॉब्स आज भी किए जाते हैं और स्वॉब्स आपको मैं बताऊंगी कि स्वॉब्स अगर किए तो अच्छी बात है बट ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू सेटअप का भी एयर सैम्पलिंग जरूरी ही है क्योंकि स्वॉब्स आपको एयर का बैक्टीरिया नहीं बताएगा या फिर वो रूम में सस्टेनेबल बैक्टीरिया कितने हैं वो नहीं बताएगा, आप जो फॉगिंग कर रहे हैं वो कितना काम कर रहा है वो भी नहीं बताएगा. The only thing swab will tell you is कि surface disinfection properly हो रहा है. So yes, swab करना चाहिए so that आपकी clinical अगर आप infection control officer है या आप admin level पे हो तो at least आपको पता चले कि आपका staff ट्रॉलीज, बेड रेलिंग्स, ऑपरेशन थिएटर, इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है वो प्रॉपरली डिसइंफेक्ट हो रहे. काफी बार ऐसा हुआ है कि स्वॉब मैं भी ये टेस्ट करती हूँ तो मुझे जब भी स्वॉब आते हैं तो कुछ इसमें ट्रॉलीज वगैरह ऑपरेशन थिएटर में सब इनफैक्ट मुझे ट्रॉलीज पे काफी ज्यादा मिलता है बिकॉज वो मोस्ट इग्नोर्ड ये है. जो एसीज लगे रहते हैं उनके वेंट्स जो होते हैं वो वेंट के ऊपर काफी जब स्वॉब लिया जाता है तो उस पे भी आई फाउंड एनवायरमेंटल बैक्टीरिया बैसिलस मिलता है मुझे, कभी कभी कॉन्स मिलता है, कोएगुलेंस, नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस. दीज आर नथिंग बट दीज आर द कॉमन एनवायरमेंटल बैक्टीरिया जो कि अगर ज्यादा परमिसेबल रेट के ऊपर गए तो फिर ये ह्यूमन में इन्फेक्शन हो सकते हैं. So I hope that answers. Any other queries you want me to answer regarding hospital infection control? And to add on this, next question is any specific reference guideline to follow for environmental monitoring and microbial air sampling in hospital environment in OTs and critical areas? Okay, इसके 2-3 हैं. What we will do is we can share the PDFs. Okay. Yes, we can share. I'll just note it down and we can share these PDFs. Okay, and someone wants to know about hospital-acquired infection. Okay, what about that, please? Mr. Vivek, please brief your question. I think he just wants to know about nosocomial infection. You can brief about that, Dr. Kedari.
So nosocomial infection is again a very broad topic. I wanted to know what you want to know about this. Okay, nosocomial infections are mainly only MDR, multi-drug organism, जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो नोजोकोमियल सबसे पहले अगर ऑडियंस जो सुन रहे हैं अगर उनको नोजोकोमियल नहीं पता है तो नोजोकोमियल आर दोज इन्फेक्शंस जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में होता है. इंसान बाहर से नहीं लेके आते हैं, हॉस्पिटल में रह के होते हैं. तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो अगर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो देयर आर हाई चांसेस, हाई प्रीवैलेंस ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन. और इसी को हमको कॉम्बैट करना है जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स से, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन से ही होगा. जैसे कि प्रॉपर डिसइंफेक्ट यूज करना, फ्लोर क्लीनिंग, आईसीयू सरफेस डिसइंफेक्टेंट, ये सब फॉलो हो रहा है कि नहीं, HIC टीम को देखना चाहिए. एंड नोजोकोमियल इन्फेक्शन का एक रेट भी होता है, वो रेट एस्केलेट नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए सारे डॉक्टर्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट को बैठ के एक 6 महीने के बीच में एक ऑफिशियली मिनट्स देखने पड़ते हैं कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं. Do you want to ask anything more in this, or do you think you got what your answer is? Not for this question, but our another question is: being a junior resident in microbiology, which book should I read for AMR? Okay. So the thing is, I don't know from which college you are, but I would like to definitely tell you that MD microbiology के अलावा एक अलग से कोर्स करना पड़ता है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कोर्स, which I have done when I was in Tata Cancer Hospital. This course is roughly around 2 to 3 months. इसकी एग्जाम्स भी रहती हैं, वाइवा भी रहता है. एंड ये कोर्स अगर आप करें तो इस कोर्स में जो MD माइक्रोबायोलॉजी में नहीं सिखाया जाता है या फिर इंक्लूडेड नहीं है करिकुलम में, तो ये एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दिया जाता है, वो और डिटेल में नॉलेज दिया जाता है. तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी. एंड व्हाट हैपेंस इज इसके स्टैंडर्ड बुक्स ऐसा है कि विच फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, टाटा कैंसर में है, हिंदुजा हॉस्पिटल में है, एंड देयर आर अदर institutes also. If you are not from Maharashtra, then please look out for hospitals who are providing such courses, because they have their own standard notes and everything that they will provide you. And trust me, अगर आप पूछ रहे हैं तो करियर वाइज मैं ये सिस्टर्स, अगर कोई नर्सेस सुन रहे हैं, अगर कोई लेबोरेटरी टेक्नीशियन ये बात सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी ये कोर्सेज ओपन है. इट इज नॉट जस्ट फॉर डॉक्टर्स. तो इन्हीं अब मतलब ये कोर्स जो मैंने लिया है, आज मैं इसी कोर्स को कभी कभी लेक्चर्स भी देती हूँ. तो मुझे बोलना है कि ये सब जन को करना है. इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है एंड आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है एंड आपका करियर CV डेफिनेटली एक्सेल हो जाता है. व्हेन यू गो फॉर जॉब आप बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल का कोर्स आपको किया है. So and AMR, antimicrobial resistance, if you're asking, इसका 10 marks का एक LQ भी आता है. If you're a student, you're asking, you can refer to Shastri book. That is what I had read. Very nicely it is given. Recent edition में भी आप देख सकते हो. Initial chapters में ही है. Anything else? Yes, doctor. The next question is: how can we rapidly detect and neutralize newly emerging resistance mechanism before they spread? Can you repeat the question? The question is: how can we rapidly detect and neutralize newly emerging resistance mechanism before they spread? This question is very good. But let me tell you, जो mechanism की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि firstly ये एक slow process है. It takes time to even realize कि इस antibiotic को resistance आ चुका है. And the scientists who work on this level, if you're talking about mechanism, if I'm not wrong, mechanism से अगर आप बात कर रहे हो तो carbapenemase बन रहे हैं कि नहीं, beta lactamases बन रहे हैं कि नहीं, I think you are asking about that. तो अगर आपको न्यूली इमर्जेंट, हम लोग पहले से तो नहीं बता सकते बिकॉज साइडली ऐसा कुछ है नहीं, बट यस, कार्बापेनेमेज अगर किसी बैक्टीरिया में, मतलब
अगर आपको 3-4 दिन वेट नहीं करना है तो देर आर दीज कार्ड टेस्ट, जो कार्बापेनोमेज आपको पहले से ही बता सकते हैं कि उसका जो बग है, या फिर हॉस्पिटल में आपको देखना है किसका प्री बैलेंस है, तो यस आप कार्बापेनोमेज के कुछ कुछ टेस्ट आते हैं कार्ड टेस्ट, वो कर सकते हैं. पर यू कांट, बट देर आर नो रैपिड टेस्ट टू कम टू नो कि यस ये मैकेनिज्म या ये रेजिस्टेंस आने वाला है या ये डिटेक्ट हो गया है. you you can always, it is always retrospective. Any other questions? Anyone else want to ask anything? Please write your questions in the chat box. मुझे मेरे साइड से पूछना है कि अगर आपको हॉस्पिटल, कैन यू शेयर एनी एक्सपीरियंस, आपको डिफिकल्टी जा रही है लेबोरेटरी में while diagnosing these, या फिर हॉस्पिटल सेटअप में आपको डिफिकल्टी जा रही है टू कॉम्पैक्ट दिस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आप अपनी डिफिकल्टी शेयर कीजिए सो दैट आई कैन टेल यू, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 10 years नाउ एंड आई वांट हियर टू हेल्प यू आउट कि आप कैसे फाइट कर सकते हैं. Any difficulty that you're facing, want to share my level if I can help. I think we have no one. Okay, everyone. So all the attendants will get a certificate. I'm pinning the webinar, feedback form in the chat box. Please fill that form, and after that you will get your certificate. Thank you, Bhumika. Thank you so much, Bhumika. And still, it's okay. Even if आपको कोई question नहीं आ रहा है, still wait for more 5 minutes. Yeah, we are waiting. Yeah. In the meantime, all of you can fill this form. Thank you, Ravinesh. And your questions don't have to be very high-fi. वो stupid सा भी question हो सकता है. आपको stupid लग रहा होगा, but वो stupid नहीं है. या फिर बहुत बेसिक लग रहा होगा, बट प्लीज आस्क क्वेश्चंस बिकॉज आई एम हियर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन डाउट ऑफ योर्स रिगार्डिंग दिस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस. मे बी वो सेम क्वेश्चन किसी और के माइंड में भी होगा, तो इट विल हेल्प देम आल्सो. आस्क योर क्वेश्चंस. आपको कोई डिफिकल्टी आती है, अगर आप टेक्नीशियन हो, अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर हो, तो माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट करते वक्त कुछ डिफिकल्टी आती है, वो आप डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज टेक्नीशियन का भी रोल बहुत बड़ा है. बिकॉज अगर उन्होंने टेस्ट प्रॉपरली नहीं किया, अगर कुछ भी गलती हो गई, तो भी रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है. इवन भले माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर सुपरवाइज कर रहे हैं, बट टेक्नीशियन का भी उतना ही रोल है. Okay, Dr. Kedari, I think we can close this session. So that brings us to end of our session today. Okay, are there any channels or platforms on social media for MD microbiology students? You can follow. Can you repeat the question? They are asking for the channel and platform on social media. So you guys can follow TA Media and Dr. Kedari's Instagram channel page. It's can you please tell them your handle? I can share my ID here. So अगर आपको so basically I have been on social media, Instagram, and I have been teaching microbiology का basic things जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, या फिर anything and everything related to microbiology. I teach people. Sometimes I make reels and I try to make interesting reels. So if you are interested in that or anything related to test, then or anything knowledgeable you want to hear about anything microbiology, then you can follow my page on Instagram. Thank you for asking about that. But how to share the profile? Just tell me the name. I'll type it out. It's Dr. Shweta.
It's Dr. Shweta SHWTA underscore through my link. And she has a nice page. You all can follow it. Alongside, you can also follow TM Media guys. Someone has asked a question about permissible count. Good question. Thank you so much. So, permissible count, ma'am, are you asking about operation theatre? If it's operation theatre, it should be less than 35 cu per cubic millimeter. And I am talking about bacterial count. If it's bacillus, if it's cons, staphylococcus, less than 35 CFU per cubic millimeter. And madam, if it's a colony, it's a fungal colony, then even one mycelial fungal colony is not permissible in any operation theatre. You have to report it and you have to call the operation theatre admin and you have to inform them that urgent and immediate steps are to be taken just अगर आपको एक भी mycelial colony अगर मिलती है, यही अगर आप सेप्टिक ऑर्थो की ओटी है जहाँ पे ऑर्थोप्लास्टी और ये सब चलता है, वेरी वेरी सेंसिटिव कार्डियो थोरेसिक ओटी है, तो मैडम वहाँ पे तो लेस देन 35 काउंट्स भी नहीं, वहाँ पे इससे भी कम परमिसिबल काउंट्स है स्टेफिलोकोकस ऑरियस के. So those are your counts. Any other doubts? Any difference in neuro OT and general OT? Difference, are you asking about the count? Is the question is only any difference in neuro OT? How to? Sorry, It's from doctor. Yeah, maybe. Yeah, I think the she's count. talking about the count. Yeah. So, see, doctor, what can doctor? I don't have the PDF right now, but मुझे किसी ने request किया है. Definitely will share the PDF mentioning the counts. As I said, जो sensitive सर्जरीज है, जैसे जो कॉज कर सकते, जैसे नी रिप्लेसमेंट है, ऑर्थो के सर्जरीज है, कार्डियो सर्जरीज है जो वॉल्व में इन्फेक्शन कर सकती है. वैसे न्यूरो का उसमें कुछ मेंशन नहीं था, सो but I would prefer, even if that was not mentioned in that, but CNS infections are very sensitive. I would, if it's only dedicated neuro OT, I would definitely keep a very low permissible count, not 35 in general case. Yeah. Okay. The next question is, what are the antibiotic reserved for controlling MDR pathogens? Okay, that's a very good question. अभी ऐसा है कि MDR reserve. Actually, trust me, every day, not a single day has passed कि मुझे clinicians call करके बोल रहे हैं, tell me that antibiotic. Okay, I'll tell you one antibiotic जो भी market में है, ceftazidime avibactam. So ceftazidime is a patient cephalosporin, वो completely resistant most cases में मिल रहा है. So what अभी pharma company ने ceftazidime किया है. सेफ्टाजिडिम एविबैक्टम भी अभी हाल ही में हमको रेजिस्टेंट मिलना चालू हुआ है. So what has happened that we have now got something known as synergy test. Synergy test is something which is new and advanced in the market right now. What it shows, we test ceftazidime avibactam and we test aztreonam. And we test this both to see whether अगर दोनों ड्रग्स साथ में दिए जाते हैं तो ये एक सिनर्जी इफेक्ट तैयार करता है क्या. When I say synergy meaning ये एक एडिटिव इफेक्ट तैयार करता है क्या. And if we see that the synergy test is positive, तो क्लिनिशियन को हमको रिपोर्ट करते हैं and then clinician ceftazidime avibactam and aztreonam दोनों ड्रग्स साथ में देते हैं and yes, we have found a very positive result. But again, we have told the clinicians as well, do not overuse it, only keep it for really life saving जो सेप्सिस से आपको लगता है बहुत सीरियस है, उन्हीं के लिए ये aztreonam और ceftazidime avibactam का कॉम्बो दिया जाए. The next question is how to confirm ESBL. Yes, the thing is, whoever has asked this question, let me tell you कि अभी ESBL diagnose करना जो हमारे प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस हैं उन्होंने मना कर दिया है. ESBL now is tested and only diagnosed for epidemiological purposes.
आपको ESBL से ज्यादा अभी कार्बापेनिल से ज्यादा ये करना है. व्हेन आई से कार्बापेनिल मतलब मेरोपेनिल, इमिपेनिल, इन पे ज्यादा ये करना है. अगर आई थिंक व्हाट यू वांट टू आस्क इज हाउ टू एक्चुअली डायग्नोज दीज. फॉरगेट अबाउट ESBL. एपिडेमियोलॉजिकल हो गया. कार्बापेनम में अगर आपको रेजिस्टेंट के अगेंस्ट डिटेक्ट करना है तो मैंने ऑलरेडी डायग्नोसिस कैसे करना है उनके नाम बोल दिए हैं. या तो आप कर्बीवेयर मेथड यूज कर सकते हो, दैट इज डिस्क डिफ्यूजन. या तो आप ई टेस्ट यूज कर सकते हो जिसमें भी एमआईसी पता चलेगा. या तो बेसिक आप किसी लैब में जहाँ पे वाइटेक या फिनिश बीडी है जो एमआईसी के साथ आपको रिपोर्ट दे, प्रॉपर मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, वो भी आपको रिपोर्ट बता सकते हैं. और अगर कार्बापेनम भी है तो कोलिस्टिन एक ड्रग है जिसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रो डाइल्यूशन मेथड से ही किया जाता है. कोलिस्टिन का एमआईसी अगर कोलिस्टिन सेंसिटिव है तो कोलिस्टिन दिया जा सकता है, which is still the higher end drug अभी तक का. Okay, we have one more question. Is phage therapy being used in clinical setup? Sorry, which therapy? Phage. PHAG, bacteriophage kind of thing. Phage therapy. So phage therapy in any clinical setup I am not aware of right now, but on clinical setup से तो बहुत ज़्यादा use हुआ है. But any clinical setup right now, so I'm not, I can't recollect if at all. Okay, thank you so much. Anyone else wants to ask anything? For the social media handles, I have sent it both the handles in the chat box. You guys can check out there, and it's TM Media N, and Dr. Kedari handle is Dr.Shweta _ through my lens. Okay, everyone. So thank you so much, Dr. Kedari, for this valuable, informative lecture, and thank you all for joining us today. We truly appreciate you taking the time to learn more about antimicrobial resistance. Thank you. I hope you found the information valuable and that you are leaving with some actionable insights. We are had yes, some that's my only motto. Yeah. आज जो आप लोग 1 घंटा यहाँ पे आए हो टाइम निकाल के, I hope you take home a good message, whatever I wanted to give you. Yeah. We had some fantastic questions, and I apologize if we couldn't get to everyone's queries. I request you all, please put your queries in the feedback form, or you can DM us all of your queries. Yeah, you can DM me on my Instagram as well if you got my handle. If you did not get my handle, please message us through any platform, and I would love to reply to your queries on my Instagram as well, because we are out here to spread knowledge. Yes. We can arrange more session with Dr. Kedari if you have so many queries. So DM us with all of your queries. It's TM Media N and Dr. Shweta through my lens. Okay. So we are closing the session. Thank you all for joining. Thank you so much. Thank you, everyone.